All right, let's start talking about arithmetic operations on functions. As numbers can be added, subtracted, multiplied, and divided to produce another number. Exactly, when you divide 2 plus 2, you will get another number 4. In similar way, functions can be added. Well, functions can be added. They can be subtracted. They can be multiplied. They can be They can be divided, and so as to produce some new function, and in this section we are going to talk about those operations and how those operations will affect the domain of the new function. Now let me just consider this. All right, let me just consider this. Let's say if I have f and g as a two functions. If I have f and g as a two function, then this function f and g can be added, subtracted, multiplied, and divided in natural way, so as to form new function, and those function would be f plus g, f minus g, f into g. This is the multiplication basically, and finally f upon g. All right, so these, if even if you may say that f and g are two different functions, adding these two will give you together a different function. अब यहाँ पे I can say, अब यहाँ पे let me just define this function for you guys. Let me just first define these functions to you guys कि मतलब f प्लस जी कैसा दिखेगा, f माइनस जी कैसा दिखेगा, f इंटू जी कैसा दिखेगा, f अपॉन जी कैसा दिखेगा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट these new functions. All right, I have these all functions with me now. यहाँ पे as you all can see the addition of this function f plus g is nothing but f of x plus g of x. Similarly, subtraction is f of x minus g of x. Multiplication is somewhat f of x into g of x, and division is f of x upon g of x. Now this states that let's just consider only this one for understanding the things. All right. For understanding the things, we will consider f plus g as an addition of function, and we'll understand how things work. All right. Now this states that basically this f plus g states that for each input the values of f plus g is obtained simply by adding f of x and g of x, or I can say the values of f of x and g of x. क्या बोला? Just ये जो इनपुट वैल्यूज है f प्लस जी के, वो कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं? सिंपली f ऑफ x की जो वैल्यूज रहेगी और g ऑफ x की वैल्यूज रहेगी, उनके एडिशन से. पर एज यू कैन सी नाउ ओवर हियर, f प्लस जी कुछ डिफाइन नहीं करके देता मेरे को. f प्लस जी मेरे लिए कुछ डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे. यू कैन सी f प्लस जी क्या है? बस एडिशन है दो फंक्शन का. कैसा हो रहा है एडिशन? ये राइट हैंड साइड में डिफाइन है कि एडिशन कैसा हो रहा है. तो इसका मतलब जो इनपुट्स आएंगे, बेसिकली जो इनपुट्स आएंगे डोमेन में से, वो f और g में क्या आएंगे? एग्जैक्टली. सो ये जो x जो है, जो कि मेरा इनपुट रहेगा, वो लाई करना चाहिए. लाई यानी कि वो आना चाहिए f और g के दोनों के डोमेन में से. मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरा जो इनपुट रहेगा f और g में, वो दोनों भी कॉमन रहने चाहिए, सो दैट मैं जब वो यहाँ पे इनपुट डालूंगा f प्लस जी में, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा. सो f प्लस जी ये कुछ डिफाइन नहीं करके देता है मेरे को, ऑल्दो f ऑफ x प्लस जी ऑफ x डिफाइन करता है, क्योंकि मेरे जो इनपुट्स आएंगे x वैल्यू, वो लाई करेंगे, वो आएंगे f में से और g में से. f में से और g में से यानी इनके डोमेन में से, f ऑफ x के डोमेन में से, g ऑफ x के डोमेन में से. सो अपने ये जो डोमेन होना चाहिए f प्लस जी का, f माइनस जी का, f इंटू जी का, वो ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें भी f अपॉन जी में भी, वो इन सब के डोमेन f अपॉन जी, f इंटू जी, f माइनस जी, f प्लस जी, ये सब के लिए जो डोमेन होगा वो ऐसा डोमेन होगा इस हिसाब से
कि मेरे जो x के वैल्यूज रहेंगे जो f और g दोनों के डोमेन में से आ रहे हैं वो कॉमन होंगे, और सेट थ्योरी में कॉमन के लिए एक अलग वर्ड है, दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन, दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है, अब मैं थोड़ी इंग्लिश की भाषा में बोलता हूँ तो देखो, इफ यू डिफाइन द डोमेन f plus g, f minus g or f into g, it has to be the intersection of these two domains, कौन से दो का, f का और g का। यानी कि let's say for an example if I want to evaluate f of g of 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को f में भी 2 चाहिए f के डोमेन में और g के भी डोमेन में 2 चाहिए। अगर g के डोमेन में 2 है ही नहीं, then can I evaluate f plus g? नहीं, I cannot evaluate। इसका मतलब let's say मेरा f का जो डोमेन है वो है, so let's just say f के मेरे डोमेन्स जो थे, f का मेरा डोमेन है 1 2 3 4 एंड g का जो डोमेन है वो है 1 3 4 5। सो f प्लस g, इसके लिए डोमेन क्या फॉर्म होगा, f प्लस g का जो डोमेन रहेगा दैट शुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन्स ऑफ f एंड g। सो इन सच केस यहाँ पे 2 नहीं है g में, तो I cannot use 2 as my input. So my inputs for f plus g would be either 1 3 would be either, shit, I just did something really bad, you know, just erased everything. All right, I have got the back I have got it back. All right, so यहाँ पे मेरा जो डोमेन रहेगा that will be 1 color 1 3 and 4 only, 1 3 and 4 only. So what is the operation is addition। अगर subtraction रहता है तो भी सेम, multiplication रहता है तो भी सेम। इसका मतलब when you apply some arithmetic operation on the functions, the original domain of these two might be different, but when you add, when you subtract, when you multiply, the domain gets completely changed, as you can see over here f plus g ka domain had only 3 elements in it. On the other hand, f and g separately had 4 elements in their domain. So what this arithmetic operation does is when you apply some arithmetic operations on the two functions, even if it's addition, multiplication or subtraction, addition, subtraction, multiplication, I'm not considering division for a while because there is something different from these three. So when you do arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication on these two functions, any two functions, not in general, not only f and g, in general any function, the domain for this new produced function will be the intersection of this function f and this another function g. Now when I say about division के लिए तो intersection लगेगा ही लगेगा, but division के लिए एक और चीज लगेगी, and that what, let's say if in this domain my g has element 0 also. Now if I want to just divide, let me just erase this, फट से erase हो जाना चाहिए, yes, yahoo. All right, now if I want to divide, all right, f of x upon g of x. Now what I will consider is the input. Now let me just consider 0 in f also, okay. Now if I put 0 in this input, if g of 0 becomes 0 or g of 1 or g of 2, anything, I'm considering just g of x equal to x. all right, मैं g of x equal to x कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं x के बदले 0 डालता हूँ तो g of 0 क्या मिल रहा है मेरे को, 0। सो इफ इन सच केस अगर कोई इनपुट डालने से मेरा डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा, देन इन सच केस इट विल बी अनडिफाइंड। तो when you go on the arithmetic operation such as division on the two functions, you have to keep in mind that the domain in such case will not only be the intersection, but you will have to exclude those input values of x for which g of x is equal to 0,
g of x इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? बहुत आसान सी बात है, अरिथमेटिक ऑपरेशन करने से आपके डोमेन्स में चेंजेस आ जाते हैं। आपका ओरिजिनल फंक्शन जो रहेगा f और g, उन दोनों का इंटरसेक्शन जो रहेगा वो आपका डोमेन फॉर्म करेगा, f प्लस g के लिए, f माइनस g के लिए, f इंटू जी के लिए, f अपॉन जी के लिए। लेकिन f अपॉन जी के लिए एक और कंडीशन आती है, वो ये कंडीशन है कि वो इनपुट्स के लिए, जो इनपुट्स के लिए g ऑफ x 0 हो रहा है, हमें उसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और उसको एक्सक्लूड करके इंटरसेक्शन लेके जो एलिमेंट्स बचेंगे दैट विल फॉर्म द डोमेन ऑफ f अपॉन g, Now let me just consider this thing. All right, let me just tell you one thing. Okay, अगर आपके पास में f of x है 2x और आपके पास में g of x है अंडर रूट x माइनस 1, सो आपका सबसे पहला यहाँ पे आपका f x माइनस 1, ऑलराइट 2x अपॉन x माइनस 1 है। सो पहले व्हाट यू हैव टू डू, मैं आपको बता रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है अपने को, f प्लस g, f माइनस g, f इंटू जी और f अपॉन जी। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए पहले तो मेरे को डोमेन लगेंगे f और g के। सो f का जो डोमेन है मेरा, डोमेन ऑफ f वो क्या रहेगा? वेल, डोमेन ऑफ f इज सच दैट यहाँ पे मेरा x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा बाकी सब कुछ होगा तो मेरे को चलेगा, है ना। सो इट्स माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 1 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। ऑलराइट, डोमेन ऑफ g इज व्हाट? डोमेन ऑफ g इज नथिंग बट, मेरा माइनस नहीं होना चाहिए एक भी एलिमेंट यहाँ पे x, मतलब मेरा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, वो तो अपने को पता ही है। सो इसका मतलब ये, सॉरी, दैट ब्रैकेट शुड बी दिस 1 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन सच दैट मेरे को इन सब के लिए एक डोमेन मिलेगा एक्सेप्ट g के लिए, और g के लिए क्या डोमेन रहेगा वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इनके लिए देखते हैं पहले। इंटरसेक्शन रहेगा मतलब क्या? मैं सिर्फ इंटरसेक्शन निकालना सिखा रहा हूं आपको, अभी तक अपन एग्जांपल पे नहीं है, एग्जांपल अपन बाद में करेंगे। ऑलराइट, इज द बेसिक थिंग दैट आई वांट यू टू फिक्स इन योर माइंड कि जब अपन डोमेन निकालते हैं, ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख रहा है डोमेन ऑफ f ये है और डोमेन ऑफ g ये है, तो भले हम इनका एडिशन कर रहे हैं तो डोमेन का भी एडिशन कर लो और लिख दो, डोमेन भी सेम ही रहेगा। नो, डोमेन will contain only and only intersection वाले points. Now as you can see over here, this contains negative से लेके 0 तक के एलिमेंट, क्या यहाँ पे नेगेटिव और 0 है? नहीं है। वेल, दिस कंटेन्स 2 इन एक्सक्लूडिंग 1, ऑलराइट, एक्सक्लूडिंग 1 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में के सारे नंबर है, इसका मतलब 2 से लेके सारे नंबर्स है, और यहाँ पे 2 से लेके सारे नंबर्स है क्या? यस, तो डोमेन ऑफ अब मैं लिखते जाता हूँ, f प्लस जी, f माइनस जी एंड f इंटू जी क्या रहेगा? वेल, इट शुड इंक्लूड 2, क्योंकि 1 तो इंक्लूड कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है और यहाँ पे 1 है ना। इट्स जस्ट द सेम केस जैसा पिछले इसमें था, अपने g में 2 नहीं था लेकिन f में 2 था, यहाँ पे g में 1 है, f में 1 नहीं है। ऑलराइट, सो मेरे को 1 को नहीं कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन f में 2 है, g में भी 2 है, सो द डोमेन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड इट गोज अप टू प्लस इन्फिनिटी पे मैंने सर्कल पैरेंथेसिस दिया है, एंड दिस सेज व्हाट? एंड दिस सेज दैट द डोमेन, this is the domain which is the intersection of the domain of f as well as g. This is nothing but the intersection of f as well as g, इनके डोमेन्स का, और ये डोमेन रहेंगे आपके f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी के। ऑलराइट, सो इससे मेरे को ये इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, हाँ मैं इवेल्युएट कर लूंगा, लगे तो मैं f प्लस जी निकाल के रख लूंगा, मैं f माइनस जी निकाल लूंगा, मैं f इंटू जी निकाल लूंगा, f प्लस जी कैलकुलेट करने के बाद में उसका डोमेन निकालूंगा, मैं f माइनस जी निकाल के उसका डोमेन निकालूंगा, f इंटू जी निकाल के उसका डोमेन निकालूंगा, बट बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है भाई कि f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी का डोमेन विल ऑलवेज बी f इंटू जी, f माइनस जी एंड f प्लस जी का डोमेन विल ऑलवेज बी द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ दिस टू। That's it. बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फाइंड द डोमेन ऑफ f एंड फाइंड द डोमेन ऑफ g एंड फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, ये आपको डोमेन दे देगा। अब आप इसमें बाद में कुछ भी सॉल्व करो, आप यहाँ पे आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, कुछ भी करो, उसका डोमेन यही रहने वाला है। ऑलराइट, सो इफ आई हैव f प्लस g ऑफ x, देन इन सच केस मैं इसको अलग इसमें लिखूं, if I have f plus g of x, so it will be what? f of x plus g of x.
Well, my f of x was 2x upon x minus 1 and my gx was under root x minus 1. Well, there is nothing much to do in such case. यहाँ पे इसको छोड़ देना है and the domain will be 2, प्लस इन्फिनिटी. अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा मैं यहाँ पे -1 डालता हूँ या मैं डालती हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि यार ये क्या आ रहा है. यहाँ पे -1 डाल के देखो, 0 डाल के देखो. यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते आप, यहाँ पे 1 डाल सकते हो आप, यहाँ पे 1 नहीं डाल सकते आप. इतना भानगड़ कौन करेगा. एफ और जी का डोमेन निकाला, पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करो अब 2, सब आंसर आएगा आपका. 2 - 1 is 1, 2 - 1 is 1. इट्स एब्सोल्युटली ओके. 4 + 1 5 आंसर है इसका, अगर आप 2 इनपुट देते हो तो. चलते जाओ आगे. Alright, let's begin up with the next. F of f minus g of x is nothing but f of x minus g of x. Well, just +1 की जगह -1 हो रहा है. That's it, nothing else. 2x upon x minus 1. There is no need to simplify it. And the domain is 2, plus infinity. Next, if I have f into g of x, then in such case I will have 2x upon x minus 1 into root x minus 1. Again, कुछ भी करने की जरूरत नहीं. Yes, you can do one thing and that one thing might be, आप ये इसको लिख सकते हैं root x into root. ये root x मतलब बेसिकली इसको ऐसा लिखा जाता है, root x into root x will give me x. So in such case ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. एंड ऑल्दो आप सिंप्लीफिकेशन कर दो, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग. आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं कंसिडर कर सकते, आप डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर नहीं कर सकते. देखा, 2 से स्टार्ट होगा. आप कुछ भी कर लो, आप डिनोमिनेटर में एक तो पहली बात 1 नहीं ले सकते. अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली तो दैट विल लीड यू टू डिनोमिनेटर 0, 1 नहीं कंसिडर हो सकता. अगेन यहाँ पे आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव भी नहीं ले सकते. सो यहाँ पे आपका जो डोमेन रहेगा, that domain should specifically start from 2 and end up at any number that you want. Now let's move on to f upon g of x. अब यहाँ पे तो अपना प्रीटी क्लियर है क्योंकि अपने डोमेन में, अपने ये जो डोमेन है उसके अंदर तो 0 है ही नहीं. और अगर उसके अंदर 0 ही नहीं है तो मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. उसके अंदर क्योंकि 0 ही नहीं है सो मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. हाँ, मेरे को फर्क तो पड़ता था कि उस वैल्यू की वजह से 0 हो रहा है तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू ही तो नहीं आ रही है. देख लेते पहले इसको अपन कैसा आता है. 2x अपॉन x minus 1 होल डिवाइडेड बाय रूट x minus 1. सो ये क्या है मेरा, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये इसको मैं कैसे फॉर्म में लिख सकता हूँ. वेल, आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म. 2x अपॉन x minus 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल इज रूट x minus 1. आई एम आउट ऑफ द पेज नाउ. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. ऑलराइट, ये आएगा 2x होल डिवाइडेड बाय रूट x minus 1 x minus 1. आप यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते. 1 के आगे सारे नंबर पुट करो कि अभी 0 नहीं होगा या कभी 0 नहीं होगा. सो अगेन द डोमेन फॉर दिस इज अगेन 2, plus infinity. So the basic underlining idea or undermining idea, whatever you want to say, is this: for arithmetic operations on functions, when you apply some arithmetic operations, you have to keep something in mind, that the domain changes. Whenever you apply addition, subtraction, multiplication, division, the domain changes. Also आप algebraic operations भी अप्लाई करते हो कोई भी फंक्शन के ऊपर, स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर आप algebraic ऑपरेशन भी अप्लाई करते हो. हमने किया भी है. x² - 4 upon x - 2 में हमने करके भी देखा था. तब हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद में x + 2 आया था और हमको डोमेन मिला था -infinity और +infinity. तब मैंने बोला था आपको कि वहाँ पे भी ऑल्दो ये अपने को मिला है, बट ओरिजिनल डोमेन तो इस फंक्शन से रिलेटेड ही रहेगा. So domain gets affected when you apply something or when you operate something on functions. So जब आप addition, subtraction, multiplication, division करते हो, so सब में common क्या है? The one thing is common, that you have to take the domain which is the intersection of the domains of f and g. Alright, लेकिन अगर f upon g आता है तो आपको इंटरसेक्शन तो लेना ही लेना है, प्लस आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको वो नंबर्स भी एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, वो इनपुट्स भी एक्सक्लूड करने पड़ेंगे जिसके लिए g of x क्या हो रहा था, 0.